بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور جناتی تلوار، ایپیسوڈ 2۔ اچانک عمرو کے قریب ایک نہایت خوفناک بڑھیا نمودار ہوئی۔ یہ کالی چڑیل تھی، پنٹال جادوگر کی خفیہ طاقت۔ کالی چڑیل نہایت خونخوار نظروں سے عمرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کالی چڑیل کو دیکھ کر عمرو کے چہرے پر حیرت کے ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو کچھ سمجھتا، اچانک کالی چڑیل کی آنکھوں سے زرد رنگ کی لہریں سی نکل کر عمرو پر پڑنے لگی۔ بے اختیار عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ یہ میرے دماغ کو کیا ہو رہا ہے؟ عمرو نے کراتے ہوئے کہا۔ بڑھیا کی آنکھوں سے نکلنے والی زرد رنگ کی لہریں چند لمحوں تک عمرو پر پڑتی رہیں، پھر یک لخت لہریں غائب ہو گئیں، مگر عمرو نے بدستور اپنا سر تھاما ہوا تھا اور اس کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھی۔ میری طرف دیکھو عمرو، کالی چڑیل نے کڑکدار لہجے میں عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمرو نے بے اختیار مشینی انداز میں چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عمرو، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کالی چڑیل نے عمرو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں، عمرو نے جیسے نیند کے عالم میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ کالی چڑیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کالی چڑیل ہو، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کالی چڑیل نے عمرو کے ذہن میں اپنے بارے میں معلومات ڈال دی تھی، اس لیے عمرو کو اس کے نام کا پتہ چل گیا تھا۔ اور تم کون ہو؟ کالی چڑیل نے پوچھا۔ میں تمہارا غلام ہوں، عمرو نے جواب دیا تو کالی چڑیل کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ تمہارا نام؟ کالی چڑیل نے پوچھا۔ میرا نام عمرو ہے، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اب تم وہی کرو گے جو میں تمہیں کہوں گی، کالی چڑیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کالی چڑیل، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، بولو مجھے کیا کرنا ہے، عمرو نے بدستور نیند کے عالم میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمرو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم جن نگری کے سردار شوگا جن کو قتل کر دو، کالی چڑیل نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں جن نگری میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں جن نگری کے اندر پہنچا دوں گی، کالی چڑیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے جن نگری کے اندر پہنچا دو، میں شوگا جن کو ہلاک کر دوں گا، عمرو نے جواب دیا تو کالی چڑیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنے دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا۔ یہ لو، تم نے اس خنجر سے شوگا جن کو ہلاک کرنا ہے، کالی چڑیل نے خنجر عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس سے خنجر لے لیا۔ ٹھیک ہے، میں اسی خنجر سے شوگا جن کو ہلاک کر دوں گا، عمرو نے خنجر دیکھتے ہوئے کہا۔ اور سنو، جب میں تمہیں جن نگری میں پہنچا دوں تو تم نے اونچی آواز میں یہ کہتے ہوئے کہ شوگا جن میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں، آج تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، شوگا جن کے شاہی محل کی طرف جانا۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ کالی چڑیل نے کہا۔ ہاں، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اونچی آواز میں شوگا جن کو للکارتے ہوئے شوگا جن کے شاہی محل میں داخل ہو جاؤں، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کالی چڑیل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ خوب، تم بہت سمجھدار ہو عمرو، کالی چڑیل نے کہا۔ آخر غلام بھی تو تمہارا ہی ہوں نا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو کالی چڑیل نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ بہت خوب، چلو اب آنکھیں بند کر لو تاکہ میں تمہیں جن نگری کے اندر پہنچا دوں، کالی چڑیل نے کہا تو عمرو نے آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو کالی چڑیل کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی لہریں نکل کر عمرو پر پڑیں اور پھر ایک جھماکہ ہوا اور عمرو وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر جب عمرو ظاہر ہوا تو وہ جن نگری کے شاہی محل کے سامنے موجود تھا۔ وہاں جنزادیاں اور ان کے بچے اور بوڑھے جن موجود تھے۔ شاہی محل کے دروازے پر 4 محافظ جن موجود تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو؟ شوگا جن کو للکارتے ہوئے شاہی محل میں داخل ہو جاؤ۔ اچانک عمرو کو کالی چڑیل کی آواز سنائی دی تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، میں جا رہا ہوں، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خنجر لہراتا ہوا اور شوگا جن، میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں، تم آج مجھ سے نہیں بچ سکتے، کہتا ہوا شاہی محل کی طرف دوڑنے لگا۔ عمرو کے دوڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی، جیسے اس کے پیروں میں جادوئی طاقت آ گئی ہو۔ اس کی آواز سن کر شاہی محل کے دروازے پر موجود محافظ جن بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارد گرد موجود جن بھی رک کر حیرت بھری نظروں سے عمرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رک جاؤ رک جاؤ، ایک محافظ جن نے عمرو کے سامنے آتے ہوئے کہا، لیکن عمرو نہ رکا۔ وہ بار بار وہی الفاظ دہراتا ہوا شاہی محل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا جو اس نے پہلے ادا کیے تھے۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، ورنہ تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا، اسی محافظ جن نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شاہی محل کے دروازے پر ایک جن نمودار ہوا۔ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر سونے کا ایک تاج تھا۔ اس کے نیام میں ایک تلوار بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یہی شوگا جن ہے، اسے ہلاک کر دو،
इसी लम्हे उमरों की समाज से काली चुड़ैल की आवाज़ टकराई। उमरों बदस्तूर तेज़ी से दौड़ता हुआ शाही महल के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। शाही मुहाफ़िज़ जिनकी आवाज़ पर उमरों ना रुका तो इसने न्याम से तलवार निकाल कर सीधी कर ली थी। फिर इससे पहले कि शाही मुहाफ़िज़ जिन उमरों पर तलवार चलाता, शोगा जिन चीख उठा, "रुक जाओ शाही मुहाफ़िज़ जिन, इसे ज़िंदा पकड़ो। मैं इससे मालूम करना चाहता हूँ कि ये कौन है और हमारी नगरी में कैसे दाखिल हुआ है।" शोगा जिन ने चीख कर कहा तो इसकी आवाज़ सुनकर शाही महल का मुहाफ़िज़ जिन रुक गया। शाही महल के दरवाजे के करीब पहुँचकर उमरों ने पूरी कुव्वत से खंजर शोगा जिन पर फेंक दिया। जैसे ही उमरों ने दौड़ते हुए खंजर शोगा जिन पर फेंका तो अचानक इसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो उछलकर मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा और इसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। उमरों के सर से पगड़ी उतरकर ज़मीन पर गिर गई। उमरों के पैर के नीचे एक पत्थर आ गया था जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर गिरा था। फिर इससे पहले कि उमरों उठता, इसी लम्हे चारों मुहाफ़िज़ जिनों ने इसके करीब पहुंचकर इसे घेरे में ले लिया। दूसरे ही लम्हे दो मुहाफ़िज़ जिन्होंने इसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। उन्होंने खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मुहाफ़िज़ जिन्हों की गिरफ्त बेहद सख्त थी। वो उज़ीली नज़रों से उमरों को घूर रहे थे। ज़मीन पर गिरने और सर पर चोट लगने की वजह से उमरों का ज़हन काली चुड़ैल के सहर से आज़ाद हो गया था। वो होश में आ गया था और खुद को मुहाफ़िज़ों की गिरफ्त में देखकर वो परेशान हो गया था। इसे अज़ियत खाने में ले जाकर ज़ंजीरों से जकड़ दो, शोगा जिन ने तहकमाना लाजे में मुहाफ़िज़ जिन्नों से मुखातब होकर कहा। तो मुहाफ़िज़ जिन इसे बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए शाही महल की तरफ ले जाने लगे। "अरे रुको, रुको, मुझे कहाँ ले जा रहे हो?" उमरों ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, लेकिन मुहाफ़िज़ जिन इसे घसीटते हुए शाही महल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो बहरे हो गए हों। "अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। क्या तुम लोग बहरे हो?" उमरों ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, लेकिन किसी मुहाफ़िज़ जिन ने इसकी बात पर तवज्जो न दी। चंद लम्हों के बाद मुहाफ़िज़ जिन उमरों को लिए शोगा जिन के करीब पहुँच गए। "शोगा जिन, अपने मुहाफ़िज़ों से कहो, मुझे छोड़ दें, मैं उमरों हूँ, उमरों यार, तुम यकीनन उमरों के बारे में जानते होगे।" उमरों ने शोगा जिन से मुखातब होकर कहा, "ज़ंजीरों से जकड़ दो इसे, इसने हम पर हमला करने की जुर्रत की है, इसे भयानक सज़ा मिलेगी।" शोगा जिन ने फंकारते हुए कहा तो मुहाफ़िज़ जिन उमरों को लेकर शाही महल में दाखिल होने के बाद अज़ियत खाने की तरफ बढ़ते चले गए। "अरे शोगा जिन, इन्हें रोको, मैं तुमसे मिलने आया था। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। शोगा जिन, इन्हें रोको।" उमरों ने गर्दन मोड़कर पीछे आते हुए शोगा जिन से मुखातब होकर कहा, लेकिन शोगा जिन ने इसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। एक राहदारी मुड़ते ही शोगा जिन उमरों की नज़रों से ओझल हो गया। महल में मौजूद जिन्नात हैरत भरी नज़रों से उमरों को देख रहे थे। "अरे तुम मेरी बात तो सुन लो। मैं शोगा जिन को हलाक करने नहीं आया, मैं तो इसे एक बात बताने आया था। पता नहीं मैंने कैसे शोगा जिन पर हमला कर दिया था।" उन्होंने मुहाफ़िज़ जिनों से मुखातब होकर कहा, "बूढ़े आदमज़ाद, खामोश हो जाओ, वरना मार मार कर हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दूंगा।" एक मुहाफ़िज़ जिन ने घबराते हुए कहा तो उमरों के चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए। "क्यों क्यों तुम मेरी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ोगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?" उमरों ने कहा। "तुमने शोगा जिन पर कातलाना हमला किया है, क्या तुम्हारा ये जुर्म कम है?" मुहाफ़िज़ जिन ने जवाब देते हुए कहा, "मैंने शोगा जिन पर कातलाना हमला किया है? कब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तो शोगा जिन से मिलने आया था, इस पर हमला करने नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है।" उमरों ने मुंह बनाते हुए कहा तो मुहाफ़िज़ जिन ने इसे घूर कर देखा। फिर वो राहदारी के आखिरी कमरे में दाखिल हो गए, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें जल रही थी, जिनकी रोशनी में जिनकी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। एक दीवार एक दीवार पर 5 कोड़े लटके हुए थे। कोड़ों के साथ-साथ तलवारें और खंजर भी लटके हुए थे। दूसरी दीवार के साथ ज़ंजीरें लटकी हुई थीं। दोनों मुहाफ़िज़ जिन्होंने उमरों को दीवार के साथ खड़ा किया और बाकी 2 मुहाफ़िज़ जिन उमरों को ज़ंजीरों से बाँधने लगे। "अरे छोड़ो मुझे, क्यों बाँध रहे हो मुझे?" उमरों ने मज़ामत करते हुए कहा। लेकिन वो सूखा सड़ा था, जबकि मुहाफ़िज़ जिन इंतहाई ताकतवर थे, इसलिए उमरों की इनके सामने एक न चल सकी और वो उमरों को ज़ंजीरों से बाँध कर कमरे से बाहर चले गए। ओह! मैं अब क्या करूँ? मैं कैसे शोगा जिनको यकीन दिलाऊँ कि मैं इससे मिलने आया था? पता नहीं मैंने इस पर कैसे हमला कर दिया था। उमरों ने बुड़बुड़ाते हुए परेशान लहजे में कहा। खौफ से इसका चेहरा जर्द पड़ गया था। इसने ज़ंजीरों से अपने हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन ज़ंजीरों के कड़े छोटे और काफ़ी मज़बूत थे। अचानक उमरों को मुहाफ़िज़ होने का ख़्याल आया, तो इसकी आँखों में चमक उभर आई। "मैं मुहाफ़िज़ होने को बुलाता हूँ, वही मुझे इन ज़ंजीरों से आज़ाद करा सकता है।" उमरों ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर इसने अपने चेहरे का रुख बाएँ तरफ करके मुहाफ़िज़ होने को आवाज़ें देना शुरू कर दी। "मुहाफ़िज़ बोने ज़मील से बाहर निकलो और मेरी बात सुनो।" उमरों ने कहा, लेकिन मुहाफ़िज़ बोना ज़मील से बाहर ना निकला। तो उमरों को मुहाफ़िज़ बोने पर गुस्सा आने लगा। पता नहीं मुहाफ़िज़ बोना कहाँ मर गया है। उमरों गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा और एक बार फिर इसने मुहाफ़िज़ बोने को आवाज़ दी। इसी लम्हे ज़मील के कोने से मुहाफ़िज़ बोना बाहर निकल आया। "आका, क्या आपने मुझे आवाज़ दी है?" मुहाफ़िज़ बोने ने सलाम करने के बाद कहा तो उमरों ने गजीली नज़रों से इसे घूर कर देखा।
नहीं, मैं शैतान को आवाज़ें दे रहा था। क्या तुम बहरे हो गए हो जो मेरी आवाज़ सुनकर बाहर नहीं आए? देख नहीं रहे मैं मुश्किल में फँसा हूँ? उमरों ने बनाए हुए लहजे में कहा तो मुहाफ़िज़ बोना ज़मील से निकला और हवा में तैरता हुआ उमरों के सामने आकर फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो गया। इसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभरे हुए थे और वो उमरों को ऐसे देख रहा था जैसे उमरों दुनिया का 8वां अजूबा हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी मुझे नहीं देखा? उमरों ने मुँह बनाते हुए कहा। आका, आपको किसने और क्यों ज़ंजीरों से बाँधा हुआ है? मुहाफ़िज़ बोने ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुझे शोगा जिन के मुहाफ़िज़ जिन्हों ने ज़ंजीरों से बाँध दिया है। इनका कहना है कि मैंने शोगा जिन पर कातलाना हमला किया है। उमरों ने जवाब देते हुए कहा। तो मुहाफ़िज़ बोने ने इस बात में सारा ला दिया। हाँ आका, वो ठीक कह रहे हैं। आपने शोगा जिन पर कातलाना हमला किया है। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरों बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? मुहाफ़िज़ बोने, मैंने शोगा जिन पर कातलाना हमला किया है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तो शोगा जिन से मिलने आया हूँ, फिर मैं इस पर भला क्यों हमला करूँगा? उमरों ने होंठ भींचते हुए कहा, आका, ये सच है कि आपने शोगा जिन पर कातलाना हमला किया है, लेकिन ये हमला आपने खुद नहीं किया, बल्कि आपसे कराया गया है। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उमरों बेख्तियार उछल पड़ा। इसकी आँखें हैरत से फैलती चली गईं। कक कक, क्या मतलब? मुझसे शोगा जिन पर हमला कराया गया है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। किसने मुझसे शोगा जिन पर कातलाना हमला कराया है? उमरों ने तेज़-तेज़ लहजे में बोलते हुए कहा। आका, आपके ज़रिए शोगा जिन पर हमला घंटाल जादूगर की खुफिया ताकत काली चुड़ैल ने कराया है। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उमरों की हैरत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। मुझे पूरी तफ़सील बताओ मुहाफ़िज़ बोने, उमरों ने जलाहट भरे लहजे में कहा। तो मुहाफ़िज़ बोने ने मुख्तसर तौर पर इसे सारी बात बता दी कि किस तरह काली चुड़ैल ने इसके दिमाग पर कब्ज़ा करके इसे शोगा जिन पर कातलाना हमला करने पर आमादा किया था। ये सुनकर उमरों के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। इसे याद आ गया था कि जब वो जिन नगरी की हदूद में दाखिल हुआ था तो एक चुड़ैल इसके पास आई थी। काली चुड़ैल, एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उमरों ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। आका, काली चुड़ैल को मालूम हो गया होगा कि इसका हरबा नाकाम हो गया है, इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरों ने होंठ बेच लिए। अच्छा, तुम मुझे इन जंजीरों से निजात दिलाओ, मैं कुछ करता हूँ। उमरों ने कहा तो मुहाफ़िज़ बोने ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इसकी आंखों से सुरख रोशनी निकल कर जंजीरों पर पड़ी तो एक हल्के से धमाके से ज़ंजीरें गायब हो गईं। उमरों आज़ाद होते ही अपने कपड़े यूँ झाड़ने लगा जैसे इसके कपड़े गिरह से अटे हुए हों। फिर इसने ज़मील से नई पगड़ी निकाल कर अपने सर पर रखी और मुहाफ़िज़ बोने को वापस मील में जाने का इशारा किया। तो मुहाफ़िज़ बोना ज़मील में चला गया। उमरों वहाँ खड़ा कुछ सोच रहा था कि अचानक एक कड़ाका हुआ और वहाँ काली चुड़ैल ज़ाहिर हो गई। इसके स्याह चेहरे पर गुस्से के तासरात उभरे हुए थे। काली चुड़ैल को देखते ही उमरों को भी गुस्सा आ गया और इसने बिजली की सी तेज़ी से ज़मील से तलवार हैदरी निकाल ली। काली चुड़ैल, मुझे मालूम हो गया है कि तुमने मेरे ज़हन पर कब्ज़ा कर मुझसे शोगा जिन पर कातलाना हमला कराया है। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। उमरों ने गज़बनाक लहजे में कहा तो काली चुड़ैल ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। लेकिन अफ़सोस कि तुम शोगा जिन को हलाक करने में कामयाब नहीं हो सके। मेरा मकसद भी यही था कि तुम शोगा जिन पर कातलाना हमला करने के इल्ज़ाम में धर लिए जाओ और वो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दे। काली चुड़ैल ने हंसते हुए कहा। लेकिन शोगा जिन मुझे फांसी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि मैं इसे सारी बात बता दूंगा कि तुम्हारे आका घंटाल जादूगर इसकी बेटी शहजादी दरबाना को ठीक करने के औस क्या चाहेगा। फिर मैं देखता हूँ घंटाल जादूगर कैसे शोगा जिन से जिन्नाती तलवार हासिल करता है। उमरों ने जवाब देते हुए कहा तो काली चुड़ैल, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यकदम सपाट हो गया और वो गैज़ो गज़ब के आलम में इसे देखने लगी। उमरो, तुम इस काबिल ही नहीं रहोगे कि तुम शोगा जिन को कुछ बता सको। काली चुड़ैल ने कराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उमरो कुछ समझता, अचानक काली चुड़ैल की आंखों से जर्द रोशनी निकलकर उमरो पर पड़ी तो उमरो रोशनी में नहा गया। उमरो ने जर्द रोशनी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके पैर फर्श ने जकड़ लिए हों। उमरो को अपना जहन चकराता हुआ महसूस हुआ। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था। उमरों ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया था। दूसरे ही लम्हे इसे एक जोरदार चक्कर आया और वो लहरा कर फर्श पर गिरा और इसकी आंखें बंद होती चली गई, शायद हमेशा हमेशा के लिए। घंटाल जादूगर को काली दलदल के ऊपर उल्टा लटक कर खास जादुई अमल करते हुए आज दूसरा रोज था। इसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और वह मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। आज स्याह दलदल की स्याह खोपड़ी नहीं आई थी, इसलिए इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभरे हुए थे। अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ और वहाँ काली चुड़ैल ज़ाहिर हो गई। इसके चेहरे पर तशवीश के तासरात उभरे हुए थे। हल्के से धमाके की आवाज़ के बावजूद घंटाल जादूगर ने आंखें नहीं खोली थी। वो बदस्तूर अपने अमल में मसरूफ़ था। काली चुड़ैल घंटाल जादूगर की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि वो इसे कैसे आवाज़ दे। ऐसा ना हो कि घंटाल जादूगर खलल पड़ने पर
اس سے नाराज़ हो जाए, लेकिन इसका ये मसला खुद ही हल हो गया, क्योंकि चंद लम्हों के बाद घंटाल जादूगर ने खुद ही आंखें खोल दी। और फिर जैसे ही इसकी नज़र काली चुड़ैल पर पड़ी, वो बेख्तियार चौंक पड़ा। काली चुड़ैल, तुम कब आई हो? घंटाल जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, मुझे यहाँ आए थोड़ी ही देर हुई है। तुम चौके अपने अमल में मसरूफ़ थे, इसलिए मैंने तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा। काली चुड़ैल ने जवाब देते हुए कहा तो घंटाल जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया? घंटाल जादूगर ने कहा, आका, इसी काम के बारे में बताने आई हूँ, काली चुड़ैल ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर बताओ, उम्मीद क्यों बांध रही हो? जल्दी बताओ, मैंने अपना अमल दोबारा शुरू करना है। घंटाल जादूगर ने कहा, आका, तुम्हारा काम नहीं हो सका। काली चुड़ैल ने डरते डरते जवाब दिया तो घंटाल जादूगर बेख्तियार चौंक कर इसे देखने लगा। इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या मतलब? मेरा काम क्यों नहीं हो सका? मुझे पूरी तफसील बताओ। घंटाल जादूगर ने होंठ बेचते हुए कहा तो काली चुड़ैल तफसील बताने लगी। काली चुड़ैल, तुम्हें एक काम कहा था, तुम वो भी पूरा नहीं कर सकी। अब अगर उमरों ने शोगा जिन को बता दिया कि मैं इसे जिन्नाती तलवार किस मकसद के लिए हासिल करना चाहता हूँ, तो वो कभी मुझे तलवार देने पर राज़ी नहीं होगा। घंटाल जादूगर ने इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में घुराते हुए कहा, वो बददस्तूर उल्टा लटका हुआ था। आका, उमरो शोगा जिनको कुछ नहीं बताएगा। मैंने उमरों का बंदोबस्त कर दिया है, काली चुड़ैल ने कहा तो घंटाल जादूगर चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। घंटाल जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, उमरो इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। मैंने इसे शोगा जिन के शाही महल के अजियत खाने से अगवा करके अंधे कुएं में कैद कर दिया है। अब तुम बताओ, मैं इसे हलाक कर दूं या तुम्हारे आने का इंतज़ार करूं? काली चुड़ैल ने जवाब देते हुए कहा तो घंटाल जादूगर के चेहरे पर पहली बार मुसर्रत के तासरात उभर आए। बहुत खूब काली चुड़ैल, तुमने उमरों को बर वक़्त अगवा करके और अंधे कुएं में कैद करके अपनी जहानत का सबूत दिया है। अब उमरों लाख चाहने के बावजूद अंधे कुएं से नहीं निकल सकता। तुम इसे हलाक नहीं करोगी, वो मेरा शिकार है और मैं इसे खुद हलाक करूंगा। और हाँ, कोशिश करना उम्रो होश में ना आए। इसे इस वक्त तक बेहोश रखो जब तक मैं शोगा जिन से जिन्नाती तलवार हासिल ना कर लूँ। फिर मैं अपने हाथों से उम्रों के टुकड़े टुकड़े करूँगा। घंटाल जादूगर ने कहा तो काली चुड़ैल ने इस बात में सर हिला दिया। तुम बेफिक्र रहो आका, मैं उम्रों को किसी सूरत होश में नहीं आने दूंगी। मैं खुद इसकी निगरानी करूंगी। काली चुड़ैल ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। घंटाल जादूगर ने कहा तो काली चुड़ैल इस बात में सर हिलाते हुए वहां से गायब हो गई। घंटाल जादूगर ने अपनी आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में जादुई अमल दोहराने लगा। उमरों की आंख खुली तो वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था, इसीलिए उमरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरों परेशानी के आलम में सोचने लगा कि वो कहाँ है। फिर इसे याद आ गया कि वो शोगा जिनके अजियत खाने में मौजूद था, जहाँ वो काली चुड़ैल से बातें कर रहा था कि काली चुड़ैल की आंखों से जर्द रोशनी निकल कर इस पर पड़ी थी और वो बेहोश हो गया था। इसके बाद इसे अब होश आ रहा था। ये कौन सी जगह है और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और कहीं काली चुड़ैल ने मुझे अंधा तो नहीं कर दिया? उमरों ने बुड़बुड़ाते हुए परेशानी के आलम में कहा। फिर इसे शब चिराग हीरे का ख्याल आया, तो इसने अपने कांधे से लटकी हुई जंबील खोली और इससे पहले कि वो शब चिराग हीरा निकालता, इसी लम्हे इसे मुहाफ़िज़ बोने की आवाज़ सुनाई दी। आका, रुक जाएं, शब चिराग हीरा ना निकालें और जल्दी से ज़मीन पर लेट जाएं, जल्दी करें। मुहाफ़िज़ बोने ने तेज़ लहजे में कहा तो उमरों का हाथ बेख्तियार रुक गया। क्यों? मैं शब चिराग हीरा क्यों ना निकालूं? मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ इतना गहरा अंधेरा क्यों है? और ये तुम क्यों कह रहे हो कि मैं लेट जाऊँ? उन्होंने हैरत भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे मुहावज़ बोना ज़मील से निकलकर हवा में तैरता हुआ उमरों के सामने आकर फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो गया। चूँकि वो ख़ास बोना था, इसीलिए अंधेरे में इसका जिस्म चमक रहा था। ऐसे लगता था जैसे सूरज की किरणें फैली हुई हों, इसलिए उमरों को वो वाज़िह दिखाई दे रहा था। अलबत्ता वो काली चुड़ैल या किसी और को दिखाई नहीं दे सकता था, ना ही इसके जिस्म से निकलने वाली रोशनी दिखाई दे सकती थी। आका, जो मैं कह रहा हूँ आप वो करें। आप जल्दी से लेट जाएँ। अगर काली चुड़ैल ने आपको होश में देख लिया, तो वो आपको दोबारा बेहोश कर देगी। मुहाफ़िज़ बूढ़े ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय बदस्तूर तेज़ लहजे में कहा, तो उमरो जल्दी से ज़मीन पर लेट गया। इसकी नज़रें बेख्तियार ऊपर कुएँ के दाने की तरफ उठ गई थीं, मगर इसे काली चुड़ैल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। काली चुड़ैल ने अभी अंधे कुएँ में झाँका था, मगर शुक्र है कि आप ज़मीन पर लेटे हुए थे, इसीलिए वो ये यही समझी कि आप अभी तक बेहोश पड़े हैं। आप अपनी आवाज़ भी धीमी रखें ताकि काली चुड़ैल आपकी आवाज़ ना सुन सके। मुहाफ़िज़ बूढ़े ने एक बार फिर तनबीह करते हुए कहा तो उमरों ने इस बात में सर हिला दिया। क्या काली चुड़ैल अब भी कुएं में झांक रही है? उमरों ने पूछा तो मुहाफ़िज़ बूढ़े ने सर उठाकर ऊपर देखा। नहीं, मुहाफ़िज़ बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा तो उमरों के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए। अब बताओ मुहाफ़िज़ बूढ़े, मैं कहाँ हूँ? उमरों ने धीमी आवाज़ में पूछा। आका, आपको काली चुड़ैल ने घंटाल जादूगर के कहने पर अंधे कुएं में फेंक कर जादू के जरिए अंधे कुएं का दाना बंद कर दिया है
और वो खुद अंधे कुएं के पास बैठी आपकी निगरानी कर रही है ताकि आप यहाँ से फरार ना हो सकें। अगर आप शबे चिराग हीरा निकालते तो इसकी रोशनी अंधे कुएं में फैल जाती और काली चुड़ैल आपकी तरफ से होशियार हो जाती, क्योंकि अंधे कुएं का दाना ना होने के बावजूद आप इसे दिखाई दे रहे हैं और आपको होश में देखकर वो दोबारा आपको बेहोश कर देती, क्योंकि घंटाल जादूगर ने इसे सख्ती से तनबीह की है कि वो आपको किसी सूरत होश में ना आने दे। आप अगर होश में आ जाएं तो वो आपको दोबारा बेहोश कर दे। मुहाफ़िज़ बोने ने तफसील से बात करते हुए कहा तो उमरों ने होंठ बेच लिए। काली चुड़ैल के पास मुझे हलाक करने का अच्छा मौका था, फिर इसने मुझे हलाक क्यों नहीं किया? उमरों ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछा। घंटाल जादूगर ने इसे मना कर दिया है, क्योंकि वो खुद जिन्नाती तलवार हासिल करके आपके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। इसलिए काली चुड़ैल के हुक्म पर आपको अंधे कुएं में कैद करके आपकी निगरानी करा रहा है। मुहाफ़िज़ बोने ने एक बार फिर तफसील से बात करते हुए कहा, क्या घंटाल जादूगर ने काली दलदल से काला फूल हासिल कर लिया है? उमरों ने पूछा। नहीं आका, काला फूल हासिल करने में अभी इसे मज़ीद 1 रोज़ लगेगा, मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब दिया। मुहाफ़िज़ बोने, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर शोगा जिन के पास ले जाओ, ताकि मैं इसे सारी हकीकत बता दूँ कि वो घंटाल जादूगर को किसी सूरत जिन्नात की तलवार ना दे। उमरों ने धीमी आवाज़ में कहा, आका, मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब दिया तो उमरों लेटे-लेटे बेख्तियार उछल पड़ा और इसकी आँखें हैरत से फैलती चली गई। क्या कह रहे हो मुहाफ़िज़ बोने? तुम मुझे अंधे कुएँ से क्यों नहीं निकाल सकते? उमरों ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि काली चुड़ैल ने अंधे कुएं के दाने के गिर्द जादुई हसार कायम किया हुआ है। इसलिए अगर मैंने आपको यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मैं जादुई हसार से टकरा कर फना हो जाऊंगा। इसीलिए अंधे कुएं से निकलने के लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उमरों ने होंठ भींच लिए। मुझे बताओ, मैं अंधे कुएं से कैसे बाहर निकलूं कि काली चुड़ैल को पता ही ना चले? उमरों ने कहा। मैं सोच कर बताता हूँ, मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा। फिर वो सोचने में मसरूफ़ हो गया। इसी लम्हे अंधे कुएं में हल्की सी रोशनी हुई तो उमरों की नज़रें बेख्तियार अंधे कुएं के दाने की तरफ उठ गईं। वो चौंक पड़ा। काली चुड़ैल दाएं हाथ में मशल पकड़े फ़ज़ा में उड़ती हुई नीचे आ रही थी। इसे देखकर उमरों समझ गया कि काली चुड़ैल देखने आ रही है कि वो अभी बेहोश है या होश में आ चुका है। उमरों ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। महावत बोने ने भी काली चुड़ैल को देख लिया था। काली चुड़ैल उमरों के पास पहुंचकर रुकी और मशल की रोशनी में इसके चेहरे पर डालने के बाद गौर से उमरों का चेहरा देखने लगी। मशल की रोशनी तेज़ होने की वजह से उमरों की आंखों में चुभ रही थी, मगर इसने आंखें न खोली। काली चुड़ैल चंद लम्हे तक उमरों का चेहरा गौर से देखती रही, फिर वो मशल बुलंद किए अंधे कुएं के दाने की तरफ बढ़ गई। जब उमरों को यकीन हो गया कि काली चुड़ैल चली गई है तो इसने आंखें खोल दी और गार के दाने की तरफ देखने लगा। काली चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। उमरों एक तवील सांस लेकर मुहाफिज बोने की तरफ देखने लगा, जो अभी तक गहरी सोच में गर्क था। मुहाफिज बोने कोई तरकीब जहन में आई। उन्होंने मुहाफिज बोने से पूछा, आका, आप बहुत सुस्त होते जा रहे हैं। मुहाफिज बोने ने जवाब देने की बजाय मुंह बनाते हुए कहा तो उमरों के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। क्या बकवास कर रहे हो मुहाफिज बोने? तुम मुझे सुस्त कह रहे हो? उमरों ने गजीले लहजे में कहा। इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई थी। आका आहिस्ता बोले, अगर काली चुड़ैल ने आपकी आवाज़ सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही काली चुड़ैल आपके नज़दीक आई थी तो आप इसे खंजरे दाऊदी मार देते। काली चुड़ैल के मरते ही जादुई असरार भी ख़त्म हो जाता और आप यहाँ से निकल जाते। मुहाफिज बोने ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा तो उमरों दिल ही दिल में इसकी जहानत की दाद देने लगा। वाकई मुहाफिज बोना ठीक कह रहा था। जैसे ही काली चुड़ैल इसके करीब आई थी तो वो इसे खंजरे दाऊदी मार कर हलाक कर सकता था। इसके हलाक होते ही वो आसानी से अंधे कुएं से निकल सकता था। तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे सुस्ती हुई है, लेकिन अब क्या हो सकता है? काली चुड़ैल को यही मालूम हुआ है कि मैं बेहोश पड़ा हूँ, इसीलिए वो दोबारा तो नहीं आएगी। तुम बताओ, तुमने कोई तरकीब सोची है? उन्होंने तईदी अंदाज में सारा लाते हुए कहा। आका, मेरी सलाहियतें मुझे इशारा कर रही हैं कि आप जब तक काली चुड़ैल को हलाक नहीं करेंगे तब तक यहाँ से नहीं निकल सकते। इसलिए आप किसी तरह काली चुड़ैल को फना कर दें। इसके फना होते ही अंधे कुएं के दाने से जादुई एहसार ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा, मैं काली चुड़ैल को कैसे फना करूँ? वो तो अंधे कुएं से बाहर निकल गई है। उमरों ने उलझन अमेज़ लहजे में कहा, आका, काली चुड़ैल को बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ज़ोर से चीखना चलाना शुरू कर दें तो काली चुड़ैल आपकी चीखें सुनकर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर आप इसे फना कर देना। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उमरे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मुहाफ़िज़ बोने, तुम्हारा दिमाग वाकई शैतानी अंदाज में काम करता है। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपके दिमाग से तो कम ही है। मुहाफ़िज़ बोने ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा तो उमरों के चेहरे से यकदम मुस्कुराहट गायब हो गई और गुस्से के तासरात उभर आए। उमरों को गुस्से में देखकर मुहाफ़िज़ बोने के चेहरे पर घबराहट के तासरात उभर आए।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बड़ा शैतान हूँ? उमरों ने गज़ीले लहजे में कहा तो मुहाफ़िज़ बोने की घबराहट में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। मम मम मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आका। आपने मेरी तारीफ़ की तो मैंने भी आपकी तारीफ़ कर दी। मुहाफ़िज़ बोने ने हकलाते हुए कहा, जो भी हो तुम्हारी बात का यही मतलब है कि मैं बड़ा शैतान हूँ और तुम छोटे शैतान हो। उमरों ने बहस करने वाले अंदाज़ में कहा, आका अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। मुहाफ़िज़ बोने ने धीमी आवाज़ में कहा। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उमरों को सिर्फ़ इसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई दी थी। क्या कहा तुमने? ज़रा ऊँचा बोलो। उमरों ने तहक़माना लहजे में कहा। मम मम मैंने कुछ नहीं कहा। मुहाफ़िज़ बोने ने खौफ़ भरे लहजे में कहा तो उमरों ने होंठ भींच लिए। फिर इससे पहले कि मुहाफ़िज़ बोना उमरों को कोई जवाब देता, अचानक अंधे कुएँ में एक बार फिर रोशनी हुई। तो उमरों और मुहाफ़िज़ बोने दोनों ने बेख्तियार चौंक कर गार के दाने की तरफ देखा तो रोशनी में इन्हें काली चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया, जो मशाल हाथ में पकड़े इन्हीं की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। लें आका, आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और काली चुड़ैल खुद ही यहाँ आ गई है। अब इसे ज़िंदा वापस नहीं जाना चाहिए। अगर ये ज़िंदा बच गई तो फिर शायद आप अंधे कुएँ से ना निकल सकें। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरों ने इस बात में सारा लाते हुए जल्दी से ज़मील से खंजरे दाऊदी निकाल लिया। काली चुड़ैल उमरों के करीब पहुंचकर मशल की रोशनी में इसके चेहरे की जानब देखने लगी, लेकिन इस दौरान उमरों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और चेहरे पर ऐसे तासरात पैदा कर लिए जैसे वो अभी तक बेहोश हो। उमरों तो अभी तक बेहोश है, फिर मुझे अंधे कुएं से किसकी आवाज़ सुनाई दी थी? उमरों को काली चुड़ैल की बड़बड़ाहट सुनाई दी। आका आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से इसे खंजरे दाऊदी मारें। इसी लम्हे उमरों की समाज से मुहाफ़िज़ बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरों ने बेख्तियार अपना सारा इस्बात में सर हिला दिया। काली चुड़ैल जो बड़े गौर से उमरों का चेहरा देख रही थी, उमरों को सर हिलाते देखकर ठटक गई। अरे! उमरों ने बेहोशी के आलम में अपना सर कैसे हिलाया है? काली चुड़ैल ने चौंकते हुए लहजे में कहा। ऐसे उमरों ने यकदम आंखें खोलकर एक बार फिर इस्बात में सर हिलाते हुए कहा तो काली चुड़ैल बेख्तियार चौंक पड़ी। वो पीछे हटने ही लगी थी कि उमरों ने बिजली की सी तेज़ी से उड़ते हुए खंजरे दाऊदी इसके सर पर मार दिया। खंजरे दाऊदी दस्ते तक काली चुड़ैल के सर में दरंसता चला गया और इसके हलक से निकलने वाली दर्दनाक चीखों से अंधा कुआं गूंज उठा। उमरों ने तेज़ी से खंजरे दाऊदी वापस खींचा तो काली चुड़ैल के सर से खून फुव्वारे की मानंद निकलने लगा। वो उछलकर ज़मीन पर गिरी और बुरी तरह से तड़पने लगी। इसके हाथ से मशल भी निकलकर ज़मीन पर गिर गई थी, जिसे मुहाफ़िज़ बोने ने उठा लिया था। काली चुड़ैल चंद लम्हे बुरी तरह तड़पने के बाद साकत हो गई, तो एक कड़ाका हुआ और काली चुड़ैल की लाश वहाँ से गायब हो गई। उमरों ने एक तवील सांस लिया। मुहाफ़िज़ बोने, अब अंधे कुएं के दाने पर जाकर देखो क्या जादुई एहसार ख़त्म हो गया है या अब भी मौजूद है? उमरों ने मुहाफ़िज़ बोने की तरफ देखते हुए कहा। मैं देखता हूँ आका। मुहाफ़िज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा। फिर वो मशल लिए ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गया। इसके चेहरे पर मायूसी के तासरात उभरे हुए थे। नहीं आका, अंधे कुएं के दाने पर अभी तक जादुई एहसार मौजूद है। मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरों के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभर आए। ओह! क्या कह रहे हो मुहाफ़िज़ बोने? तुमने तो कहा था कि काली चुड़ैल के मरते ही जादुई एहसार भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जादुई एहसार क्यों ख़त्म नहीं हुआ? उमरों ने परेशान लहजे में कहा। आका, मेरा ख़्याल तो यही था, लेकिन काली चुड़ैल ने कोई ख़ास जादुई अमल किया हुआ है, जो इसके मरने के बाद भी कायम है। और इसे किसी ख़ास तरीके से ही ख़त्म किया जा सकता है। मुहाफ़िज़ बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा तो उमरों ने होंठ बेंच लिए। फिर तुम मालूम करके बताओ कि मैं जादुई हिसार कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? उमरों ने कहा। आका दुआ करें मेरी सलाहियतें काम कर रही हों। मुहाफ़िज़ बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा। फिर इसने अपनी आँखें बंद कर लीं, जबकि उमरों होंठ बेचे इसकी तरफ गौर से देख रहा था। उमरों खुद भी बेहद परेशान था और वो सोच रहा था कि अगर मुहाफ़िज़ बूढ़े को जादुई हिसार ख़त्म करने का तरीका मालूम ना हुआ, तो वो अंधे कुएँ से कैसे निकलेगा? वो घंटाल जादूगर से जिन नगरी पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँचकर शोगा जिन को सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद मुहाफ़िज़ बूढ़े ने आँखें खोल दी। आका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी सलाहियतें यहाँ काम नहीं कर रहीं। मुहाफ़िज़ बूढ़े ने कहा तो उमरों पर जिलाहट तारी हो गई और वह बना कर रह गया। एक तो अहम मौक़ों पर तुम्हारी सलाहियतें काम करना छोड़ जाती हैं। तुम मशल मुझे दो और वापस ज़मीन में जाओ। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। उमरों ने गजीले लहजे में कहा तो मुहाफ़िज़ बूढ़े ने मशल उमरों के हवाले की और ख़ुद हवा में तैरता हुआ ज़मीन में चला गया, जबकि उमरों गहरी सोच में डूब गया। शोगा जिन लम्हे-लम्हे कदम उठाता हुआ अज़ियत खाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इसका चेहरा सपाट था। इसके पीछे 4 मुहाफ़िज़ जिन मौदबाना अंदाज़ में चलते हुए आ रहे थे। शोगा जिन के हुक्म पर उमरों को अज़ियत खाने में ज़ंजीरों से बाँध दिया गया था। अब शोगा जिन उमरों से मालूम करना चाहता था कि वो कौन है और इसने किसके कहने पर इस पर कातलाना हमला किया है। 3 राहदारियों से गुज़रकर वो अज़ियत खाने के दरवाज़े के पास पहुँच गए। अज़ियत खाने का दरवाज़ा बंद था और दरवाज़े के दाएँ-बाएँ 2 जिन हाथों में तलवारें लिए मुस्तैद खड़े थे। जब उन्होंने शोगा जिन को देखा तो एक जिन ने जल्दी से अज़ियत खाने का दरवाज़ा खोल दिया और शोगा जिन अपने मुहाफ़िज़ जिनों के साथ अज़ियत खाने में दाखिल हो गया। मगर अज़ियत खाने में दाखिल होते ही वो बेख्तियार ठटक गया, क्योंकि अज़ियत खाने में उमर मौजूद नहीं था और ज़ंजीरें फ़र्श पर पड़ी हुई थी। वो कैदी कहाँ है? शोगा जिन ने हैरत भरे लहजे में कहा।
پھر اس نے باہر کھڑے جنوں کو آواز دی تو دونوں جن بکھلائے ہوئے انداز میں اندر آ گئے۔ قیدی کہاں ہے؟ شوگا جن نے تاکمانہ لہجے میں پہرے پر مامور جنوں سے پوچھا۔ وہ بھی حیرت اور خوف بری نظروں سے فرش پر پڑی زنجیروں کو دیکھ رہے تھے۔ آقا، آقا، کک کک۔ قیدی تو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، ایک پہرے دار جن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ زنجیریں کھول کر کیسے فرار ہو گیا ہے؟ شوگا جن نے داڑتے ہوئے کہا تو دونوں پہرے دار جن تھر تھر کانپنے لگے۔ آقا، ہم دونوں دروازے پر کھڑے تھے، ہمارے سامنے تو قیدی باہر نہیں نکلا۔ دوسرے پہرے دار جن نے ہمت کر کے کہا تو شوگا جن گور کر اسے دیکھنے لگا۔ تم دونوں پہرے پر موجود تھے اور تم دونوں کے سامنے قیدی یہاں سے فرار نہیں ہوا، تو پھر کیا قیدی کو زمین کھا گئی ہے؟ شوگا جن نے بدستور داڑتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوگا جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اذیت خانے سے نکل کر اپنے دربار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے محافظ جن اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ دربار میں پہنچ کر شوگا جن نے اپنے لیے مخصوص شاہی کرسی پر بیٹھ کر 3 بار تالی بجائی تو فوراً ایک جن دربار میں داخل ہوا۔ کیا حکم ہے آقا؟ جن نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ شاہی باخبر ستارہ شناس جن کو بلاؤ، شوگا جن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر آقا، جن نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر واپس مڑ کر دربار سے باہر نکل گیا۔ شوگا جن حیران تھا کہ قیدی زنجیریں کھول کر اور پہرے دار جنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کیسے فرار ہو گیا ہے۔ یہی بات وہ شاہی باخبر جن سے معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب تک وہ قیدی کے بارے میں معلوم نہیں کر لے گا وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دربار میں ایک بوڑھا جن داخل ہوا۔ اس نے زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا، اس کا سر گنجا تھا، مگر سر کے پچھلے حصوں میں سفید بال جالروں کی صورت میں لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی اور اندر کو دنسی ہوئی تھی۔ کیا حکم ہے آقا؟ بوڑھے جن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ شاہی باخبر جن، ادھر بیٹھو، میں نے تم سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ شوگا جن نے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو بوڑھا جن اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پوچھے آقا، آپ